Namaste. Good evening to everyone. Honestly, someone like who is more comfortable in writing rather than speaking, sitting here and talking to you is not an easy task. Believe me, writing was never my passion. It's all began with when my kids started asking me silly questions. For example, one day my son Raghav, where are you? So one day my son Raghav asked me, Papa, मैं क्या भगवान बनूंगा? So it was so weird question. I was shocked. I asked him to repeat again. Literally उसको मैंने बोला कि राघव दोबारा बोलना जरा. So he innocently asked me, Papa, every day you tell me the story of God Ram and God Krishna, that they do some divine activity and become God from their childhood. I am also a kid. I am also doing good activities. I am also keeping people happy. But I haven't managed to yet become a God. मेरा नंबर कब आएगा? So as you know, that my life is full with numbers and deadlines. So I ignored that question. But somewhere I realized that beyond balance sheets, I have to start looking by seeing inside me. And that's how these two books come into existence. The Hidden Resonance and The Flame of Silence. These books is my way of retelling the Bhagavatam in simple and modern style, where today's young generation can relate it and can enjoy while reading. These books also reminds us that Dharma is not some old way of some old scripture. Dharma exists in our daily life, in our daily routine. It exists in the form of kindness, curiosity, bravery, courage, and even laughter. So that's pretty much from my side. I would like to thank each one of you for being here and inspiring me and encouraging me. I hope you all will like reading these books as much as I writing these books. That's where the real choices begin. Yeah, so I think that's the stage where everyone has to take the toughest decision of their life. And Dharma get tested in this period. Great. That makes sense. Your book makes science with spirituality. Why is that? So I believe both comes with the curiosity. Right, so in earlier era, our sages studied the light, sound, energy without the modern labs. Right, so these are like two old friends meeting together in the book. Yeah, interesting. Okay, hardest part about writing the series? To make it simple, so I have to respect Srimad Bhagavatam, yet make it funny for the young generation. That must be so difficult. Making it funny for me. And they're building suspense. So I have to create the harmony in all of three. What do you want readers to feel after reading this book? That spirituality and modern life, even laughter, can go hand to hand. Okay, what comes to your mind when it is about the hidden resonance Listening, and flame of silence? awakening, Amazing. Tea, coffee, or silence? silence definitely. It's more stronger. The toughest word in Sanskrit that you've ever written so far? Kaya Maya. Simple to spell or speak, but impossible, almost impossible to explain. Oh, lovely. The first person you shared your drafts with? My daughter Navya, my biggest critic, my friend Adit. And if readers remember one thing after closing your book, what would that be? Again, same life, spirituality, and laughter can go hand in hand. That makes sense. Yeah, wow, Shishti, that was wonderful. Quick, honest, and straight from heart. The way he writes.
That's very simple and straightforward. Now, Priya, you have been quite excited about this book, haven't you? I've heard that you have read it already. Well, guilty as charged. Yes, I have. It's part adventure, part mystery, part spiritual discovery, but I am so happy for you, Ashish. You know that. जब कोई आपके फैमिली से कुछ अच्छा करता है, सो एक जो फीलिंग आती है कि मैं इन्हें जानती हूँ या मैं इनसे जुड़ी हूँ, वो एक बहुत अलग फीलिंग होती है. और जैसा एक बार मैं और आशीष डिस्कस कर रहे थे, विच इज ऑल्सो द बैकड्रॉप ऑफ माई सेकेंड बुक साइलेंट थ्रेड्स. वो किताब राधा और कृष्ण के, श्री जी के वो क्या रिलेशन है. बहुत सालों से, बहुत सेंचुरीज से लोग ये डिसिफर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या रिलेशन है. और सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हम उस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं. कुछ रिलेशनशिप्स बियॉन्ड नेम हैं, जिसमें सिर्फ एक फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ केयर है, और हम भूल जाते हैं कि केयर से बड़ा कोई रिलेशन नहीं है. एंड वही एक रिलेशनशिप है जो एंड तक रहता है. फॉर मी, जब हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया बुक के बारे में, एंड आशीष और मैं ऑफिस में सबसे जल्दी आते हैं, तो फिर वो मुझे कहते हैं कि ये जरा सा पढ़ो, ये कैसा है. तो मैंने बताया ये बहुत बढ़िया है. तो कहते हैं कैसे. मैंने कहा जिसमें एक सबसे बड़ा पर्सनल रेजोनेंस है कि पहली बात धर्म थॉट नहीं है, धर्म आचरण है. आप कैसा बिहेव करते हो वो धर्म है. कर्म तो वो है जो आप कर रहे हो, पर कर क्यों रहे हो वो धर्म है. एंड सेकेंड चीज है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी ने हमेशा एक ही चीज सिखाई कि हर चीज का जवाब भागवत में है. तो हम लोग छोटे होते थे तो मतलब जैसे ही कुछ भी मुझे कंफ्यूजन होता था, डाउट होता था, तो मैं ऐसे करके, जैसे कि बाद में बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं ना, कॉपी क्रिकेट वाला वैसा, तो मैं हमेशा एक आंसर ढूंढती थी. एंड सबसे बड़ा आंसर जब मैं एक करियर फेज से जा रही थी, एंड मुझे ऐसे लगा कि क्या आपको सच बोलना चाहिए, क्या आपको वो सच बोलना चाहिए जो सबको सच लग रहा है, या आपको वो सच बोलना चाहिए जो सच जैसा लग रहा है. और मैं घर पे गई और मैं डैडी के मतलब मंदिर के घर जाके भगवत उठाया. एंड भगवत की सबसे बड़ी लर्निंग मेरे लिए यही है, जहाँ पे अर्जुन खड़े होके कहते हैं सब खिलाफ हैं राघव, सब खिलाफ हैं, और कृष्ण सिर्फ एक ही लाइन कहते हैं, सब हारेंगे पार्थ. सो आपको बस यही समझना है कि आप कहाँ खड़े हैं और आप किसके साथ. कभी कभी शायद कोई नहीं है, पर आपका सच आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा. And that is all this book is all about. I think this book is all about passion. This book is all about just being you. Because जो आप हैं वही आपका धर्म है. किसी को उसका अहंकार ले लेता है और किसी को अहंकार का नॉलेज बचा देता है. यही डिफरेंस है रावण और राम में, और यही डिफरेंस है जहाँ हम कहते हैं कि आप कब समझ रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत. तो आप तब सही कर रहे हैं जब आपको ये समझ आ रहा है कि गलत है, नहीं तो सभी सही है. एंड आई थिंक आशीष, द वेरी फैक्ट दैट हमने डिस्कस व्हेन यू वर टेलिंग मी एंड वी सेड दैट हाँ ये 2 बुक्स में होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, एक ह्यूमन माइंड का भी अब्जॉर्प्शन है. हम कितना ले सकते हैं. ज्ञान तो बहुत, मेरी हाथ ही इतने बड़े हैं तो इतना ही लूंगी, मेरी झोली इतनी बड़ी है तो इतना लूंगी, तो वो तो मेरे ऊपर है, मैं कितना किससे बटोर सकती हूँ. तो उसी तरीके से आई वुड strongly urge, please recommend to family, friends and people you don't know also, because that is real help when you help who you don't know. So please tell them that this book is going to enlighten them, this book is going to show them a new path of life, and
the most beautiful thing which I am so proud of is that, you know, this is about our faith, and faith has no tag of religion. Faith is what you believe. So anybody can read it, and it's for everybody, and you know that we've had enough discussions. But I wholeheartedly uncle auntie मैं आपको सबसे ज़्यादा आज congratulate करती हूँ, because कुछ 1.5-2 महीने पहले फर्स्ट टाइम इतने सालों में एक आधी जिंदगी निकल जाती है आज के मॉर्निंग में, और फर्स्ट टाइम मैंने भी अपनी मम्मी को देखा था जब वो बोल रही थी मेरे किताब में मोचन में, मुझे बोली कि अभी अच्छा लग रहा है, अभी तुमने थोड़ा कुछ ठीक किया है, तो मैंने बोला अब लग रहा है आपको थोड़ा ठीक किया है, तो फिर ऐसा। सो मुझे पता है आज आप बहुत प्राउड होंगे, बट ये बिल्कुल आपका पर्सनल मोमेंट है, एंड प्लीज एंजॉय दिस विद योर फैमिली, योर सिस्टर। यू वर सो मच लॉन्गिंग दैट योर सिस्टर शुड कम हियर. He was like, we have to do it only when you come, so we are so happy you are here. And बहुत बधाई हो। आप कह रही थी कि जब पुस्तक रिलीज हो रही थी बड़े भावुक हो रहे थे। पुस्तक रिलीज होना एक लेखक के लिए प्रसव पीड़ा जैसा होता है। कई पुस्तकें लिखने के बाद भी मुझे लगता है, और पहली पुस्तक का जो एक्साइटमेंट होता है, जब बुक जा रही है, पब्लिशर के रुकी हुई है, फिर उसमें करेक्शन हो रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, सबसे मज़ेदार बात ये थी कि छपते आपको ध्यान है इसमें गलती होगी। मुझे याद है पहली बुक में जब दिल्ली से लेके चला था, तो बहुत आखिरी में बुक का लेके मैं वही आ रहा था मैं, और मैंने बड़ा भाग दौड़ करके अपना बैग रखा और मैंने पुस्तक निकाली, और जैसे ही खोला मैंने उस पुस्तक को बीच में से, उसी में पार्टीशन के अंदर बड़े बड़े अक्षर में लिखी थी। तो ये सारी पीड़ा होती है, पुस्तक कब आएगी, कैसे आएगी, तो इसके कारण आप बहुत बहुत उस पीड़ा से गुजरे भी, आपको उसकी कल्पना होगी। बहुत बहुत आपको बधाई हो। मैंने पुस्तक पहले देखी है, और एक मुझे, हम पहले कहते थे कि भाई जहाँ सरस्वती होती है लक्ष्मी नहीं होती, और जहाँ लक्ष्मी होती है सरस्वती नहीं होती, पर मुझे लगता है युग बदल रहा है। फाइनेंस वाले लोग अब सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। फाइनेंस से निकले, अश्विन संगी जी फाइनेंस से निकले, मैं उनके नाम ले रहा जो गिल्डिंग और जो धार्मिक बातों पे लिखते हैं। अभी आप ऐसे और बहुत सारे नाम हैं, अमी गणात्रा जी भी फाइनेंस में से निकली हैं, तो शायद वो फाइनेंस में ऐसे कुछ बातें आते हैं कि सब मिथ्या, ऐसा ध्यान में आता है शायद। तो आप धर्म की ओर मुड़ते हैं। मैंने पुस्तक के ऊपर नज़र डाली है, कुछ मैंने पन्ने पढ़े भी हैं, और हम बाल गोकुलम चलाते हैं, बाल गोकुलम के कार्यकर्ता आए हुए हैं। तो मेरी पत्नी हमेशा कहती थी कि हम 3-4 साल हो गए, वही कहानियाँ, वही जातक कथा, वही अपने जो अलग अलग हमारे 3-4 ग्रंथ हैं, उसके अलावा हमको किताब कहानियाँ मिलती नहीं है। बाहर वाले कैसे रोज नई किस्त की कहानी निकालते हैं, उसी कहानी के आसपास कहानी में कहानी निकालते हैं, और बच्चा इंतजार करता है कि अगली पुस्तक कब आएगी, और हम वही किताबें लेके बैठ जाते हैं। तो नई कहानियाँ कौन लिखेगा? तो जो आपने वो एक वैक्यूम था पूरा किया है कि बच्चों को इंटरेस्ट बना रहे पढ़ने में, नहीं तो हमने कह दी किताब पढ़ ली, अभी आगे क्या पढ़ूँ, तो फिर हम बड़ी बड़ी किताबों की बात करते हैं। लेकिन बच्चों के लिए किताबें, और उसके अंदर धर्म से जुड़ी कथाएँ, ये लिखने का जो हमने प्रयत्न किया बहुत ही आवश्यक था। और जो धार्मिकता बढ़ी है समाज के अंदर, जो माता पिता को ध्यान आ रहा है कि वो कुछ खो रहे हैं, उनको ध्यान में आते कि जो खुद उन्होंने कहा बच्चा उससे अधिक खो रहा है, स्कूल में तो कुछ मिलता नहीं है, तो स्कूल वो खाते जो बच्चे को देना है, स्पिरिचुअल खाते देना है, कहाँ से देंगे, वो उनके लिए बड़ी एक समस्या है। और हर तरफ तो अधार्मिकता का बोलबाला हो रहा है, और हर तरफ ऐसी बातें सिखाई जा रही है कि नीति का कोई मतलब नहीं है, और चरित्र का कोई मतलब नहीं है, और खाओ पियो ऐश करो। और ये जो प्रवृत्ति है उसके कारण एक बहुत एक ऐसी समाज बन रहा है जो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जा रहा है। बच्चे पर्पसलेस और गोललेस लाइफ जी रहे हैं। हम बच्चे बोलते हैं पढ़ लिख जा। सबसे अधिक हमारी कमजोरी हिंदू समाज की है कि बच्चे को पैदा होते जैसे हम शुरू करते हैं उसको क्लासेस में डालना, तो ये भी कर ले, वो भी कर ले, जो मेरे दादा ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो सब कुछ कर ले। और सुबह से रात तक बच्चा क्लास के चक्कर काटता है, कहीं जाता नहीं, कि शिक्षा लेता नहीं, फिर 10वीं के बाद इंजीनियरिंग में जाता है, मेडिकल में जाता है, और वो खो जाता है, खुद के लिए खो जाता है, परिवार के लिए खो जाता है, और समाज के लिए तो खो ही जाता है। उस समय उसको जड़ों से बांध के रखने के लिए जो चाहिए, उस आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश करें। इसके अलावा बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। नहीं होता है,
तो उसको विद्या कैसे प्राप्त होगी, वो भी आवश्यकता है। तो ये जो हम देखते हैं क्रॉसरोड्स है, 3 क्रॉसरोड्स में है। प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य गए थे अमेरिका में। भारत में तो वैसे अध्यात्म था, परंतु विदेशों में वैसी परिस्थिति थी कि सबके सब डिसल्यूशन हो रहे थे, कहीं नहीं, जैसे जीवन में आगे क्या बढ़ना है, कहाँ जाना है। तो जब वो प्रश्न आए तब प्रभुपाद जी वो समय पे पहुंचे, वो कंटेक्स्ट उनके लिए और हमारे जो धर्म का जो बीज है उसको कैसे अच्छा वातावरण मिले, वो पर्याप्त वातावरण था। तो आज तो मैं ऐसा लग रहा है कि वो वातावरण में ऐसे संवाद रखे जाए तो ये धर्म को, जब कहते हैं धर्म अर्थ जुड़ा हुआ है। हमारे रतन जी कह रहे थे कि सरस्वती जी और लक्ष्मी जी साथ में नहीं होती, लेकिन वो पीछे पीछे चलती है, आगे पीछे रहती है। तो अगर धर्म है, विद्या है, तो लक्ष्मी जी भी आएगी। अगर लक्ष्मी जी है तो फिर जैसे ये उदाहरण दे आशीष जी, विद्या भी आनी ही है, क्योंकि वो धर्म कार्य में ही अर्थ बनता है, इसलिए उसको अर्थ कहा गया है। अर्थ को धन नहीं कहा गया है। जो मूल्यवान है वो अर्थ है, वो समाज के लिए मूल्यवान हो, परिवार के लिए मूल्यवान हो। तो जैसे वन थॉट जो आप कहेंगे, तो मैंने जो कुछ पुस्तक पढ़ी उसमें मुझे ये स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि बच्चे एक, कहते ना, एक शोध के लिए निकले हैं। They are on to a discovery of the world outside their school, right? तो ये बहुत आवश्यक है और ये डिस्कवरी गैजेट्स के साथ नहीं हो सकती। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया कि बच्चों को पहले गैजेट फ्री कर दिया इस बुक में, कि वो बच्चे गैजेट लेके बाहर नहीं जा रहे, वरना वहाँ पे भी सेल्फी लेते हैं, वहाँ पे भी वो सब करते हैं, वहाँ भी वो खुद को देख के स्माइल करते हैं और बाहर के वाले कुछ नहीं देख पाते और इसीलिए वो आपस में मित्रता बनाते हैं। तो ये वाला जो है, और ये मैं जब भागवत कोई पुस्तक नहीं है, गीता भी कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, एक वो कंटेक्स्ट में जन्मा हुआ एक कहते ना, एक प्रकाश है। तो वो प्रकाश हमारे जीवन में हम ढूंढ सकते हैं, उसको हम आगे लेके उसके ऊपर हम खोज कर सकते हैं। और इसीलिए जब ये भागवत भी पूरा देखें तो कृष्ण की जो लीला है, भगवान कभी कोई स्कूल में गए नहीं, सारा ब्रज उनका स्कूल था, उनकी शाला थी। रोज अलग अलग प्रकार के श्रृंगार करते थे, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते थे, आपस में मिलते थे, बांटते थे, गाय को चराते थे। उसके बीच बीच में अधर्म का नाश होता था। तो धर्म क्या है? जो हमारी प्राकृतिक जीवन शैली है, और वो बच्चों में तो बहुत पहले आ जानी चाहिए कि वो पहले स्कूल में ना जाए। इसलिए हमारे यहाँ पे था कि 6 साल तक तो बच्चों को स्कूल में नहीं रखना है, कि वो समय में उसको सारे सृष्टि के साथ जो उसका जो जुड़ाव है उसको बनने देना है। तो ये जुड़ाव जो नहीं बन पाया, वो आपने प्रयास किया है एक डिस्कवरी सिंपलीपल, राइट? सिंपलीपल में जाके उसको डिस्कवरी कर रहे हैं। और जब मैं देख रहा हूँ कि जैसे कैसे पैरल किया गया, सबको एक पूरा, आप शांति से लेके एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सोच है और बहुत छोटे छोटे सूत्र लिखे हैं उन्होंने, जो कि ऐसा नहीं है कि वो पुस्तक पढ़ ली अभी नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट वही होगी। आप वही पुस्तक पे मंथन कीजिए। आज वही भागवत हम फिर लिख रहे हैं, अब गीता भी वही हम प्रवचन कर रहे हैं। वो जो कंटेंट जो भगवान ने दिया है उसी के ऊपर चल रहा है। ऑथर का जो ओरिजिनल ऑथर है उसके हम एक्सपोनेंट्स बन रहे हैं, हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम केवल उसको एक कंटेक्स्ट दे रहे हैं। तो ये कंटेक्स्ट देने का जो है, मैं तो इनको बहुत बहुत अभिनंदन इसलिए दे रहा हूँ कि उनके बच्चे आगे जाके ऐसी पुस्तक और लिखेंगे, ऐसी प्रेरणा उन्होंने अपने बच्चों और लोगों को दी। तो ये जो होगा तब ये पूरा जो चक्र होगा वो संपन्न होगा। तो यही शुभ आशीष से मैं चाहता हूँ कि ये पुस्तक एक प्रेरणा बने, प्रेरणा का बीज बने,
युवकों को एक प्रेरणा मिले कि मैं भी कुछ ऐसा अनुभूति करके मैं लिख पाऊँ। तो ये भी एक बड़ी मैं सोचता हूँ कि इसका एक जो फल होगा ये इसमें बदलेगा, तो ये एक प्रकार की परंपरा बनेगी और ये परंपरा से ही ये ज्ञान अभी तक हमारे यहाँ पे समृद्ध हुआ है। अगर ये समृद्ध नहीं होगा इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, तो ये शायद कंटेंट जो होगा भागवत और गीता के ऊपर लिखा नहीं जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने परंपरा को जागरूक किया। हर्ष उल्लास, आज दिल में है बहुत हर्ष उल्लास, आए हैं लोग सब बहुत ही खास, पर भला ऐसा क्या हुआ है जो सब एकत्रित हुए हैं आज। ना ही है यह कोई जश्न किसी जन्मदिन का, ना ही है कोई विवाह, ना ही है विवाह की वर्षगांठ। यह तो है बस एक सीधे साधे इंसान की सच्ची कोशिश, मेहनत, लगन, परिश्रम एवं ज्ञान का ज्ञानियों के द्वारा सराहना का प्रयास। और वह सादा सा इंसान कोई और नहीं, वो है मेरा बड़ा भाई, जिसे सीधे तौर पर मैं कभी बता नहीं पाई कि जिंदगी की बहुत सारी परिस्थितियों में मैं करती हूँ तुमको फॉलो। जब जिंदगी दिखाती है मुझे आंखें चार, तब याद आ जाता है मुझे तुम्हारा मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ईश्वर की सत्ता पर अपना अड़िग विश्वास। इसीलिए यही तो है सनातन का गर्व कि क्या कोई कितने भी नालंदा जलाएगा, हमें क्या कोई टीवी मोबाइल इंटरनेट डराएगा। जब तक है तुम जैसे आशीष, हम सबकी यही है शुभाशीष, जब तक है इस धरा पर तुम जैसे आशीष, ज्ञान जो हर घर ज्ञान की लौ जलाएगा। And before saying thanks to anyone, I first want to thank you, the Supreme Creator. Whatever happened here today, whatever I have done, it's not mine. It was His grace, and I just express in my words. So it's a thanks to the Supreme Creator. And in this moment, I am getting the emotions and feeling of Bhagavatam of Prahlad, where he was praying to the God, if I get the countless birth, so in every birth I should serve you only, and my every breath should take your name, then also I can't repay you. So that's the feeling I'm getting as of That's now. it. And after that, my heartfelt thanks to our guest of honor, Dr. Atul Sharda ji, his wife Shama ji, and dignitaries from Gokulam, Digvijay ji and his wife, His Grace Krishna Chaitanya Das Prabhu ji, and Dr. Rajni Tiwari for sparing their time to grace this event. Your blessings and presence means a lot to me. To my parents, Asha and Rajkumar, the value you have implanted now become these pages. When I was rightly said by you, Rajni, to my wife, who tolerated my midnight madness while writing, and to my kids, Navya and Raghav. Whatever all the moments when I am writing, those moments were belong to them. I just borrowed it. So sorry to both of you that I have borrowed your time. Then to my sister Pragya for her unconditional support and unwavering faith in my writing. Thanks for coming here. To Dr. Rajni Tiwari for being my mentor again in pre-publishing, post-publishing and even mentoring me for the event. To my dear friend Alec. So he has read the manuscript and number of times so I couldn't count. So he also suggested changes and he consoled me also patiently. हो जाएगा सब हो जाएगा. And to my family members, friends and colleagues, Rati, Pulkit, Mohan, Manoj Bhaiya, Sneha, Imran, Keyur, Prabhu uncle here not here today.
नरेश अंकल। बुक्स का लॉन्च किया गया है जिसमें गार्डियंस ऑफ धर्मा एंड आपका फ्लेम्स ऑफ साइलेंस। फ्लेम ऑफ साइलेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है और ये धर्म के लिए कितनी कारगर साबित होगी आपके साथ? आशीष जो हम लोग आशीष का काफ़ी काम किया हुआ है, सो मैं उनके अंडर में काम करता हूँ। तो जब भी हम लोग लंच टेबल पर भी बैठते हैं तो वो धर्म के जिस हिसाब से उनका जो स्टोरी टेलिंग है उससे आप रिलेट कर पाते हो कि रियल लाइफ में आप कैसा क्या चल रहा है, आप उसको कैसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। सो ये बुक उन्होंने उसी से इंस्पायर होकर जो टेबल कॉन्वर्जेशन है, उनके जो बच्चे जो क्वेश्चंस करते हैं कि आज की जनरेशन कैसे उसको रिलेट कर सकते हो, तो उसको थॉट में रखते हुए उन्होंने दोनों बुक्स को लिखी है। दोनों बुक ही एक सीक्वेंस में है जो आपको पूरा एक लाइफ नरेशन बताती है कि आज की जनरेशन कैसे अपनी आपको धर्म से रिलेट कर पाए। I think this will be a personal resonance of our daily life. This will give us solutions to us and the kids as to what they should do when they are stuck up in something, easy way out, and such is the process. आज की जनरेशन I think this will bring them out of the delusion world that they are living in. So that will be a great guide to them. थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बुक लॉन्च हुआ है, काफ़ी आपकी मेहनत भी इस चीज़ के लिए आज सफल हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक ये तो बहुत दिनों की मेहनत चल रही थी। जो ऑथर हैं उन्होंने तो कितने ही दिन और कितने ही साल लगा दिए होंगे, बट हमारी जो मेहनत है वो कुछ दिनों की है। बट आफ्टर ऑल सब कुछ इतना अच्छा हो गया तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, इतनी जो मेहनत है वो इतनी वर्थ थी, और आज जो रिज़ल्ट आया हो तो बहुत ही बेहद ही खूबसूरत रहा है। एंड आशीष जी को जिस तरह से हम जानते हैं, इतने मेहनती हैं कि जिस तरह से वो किसी भी चीज़ में कन्विक्शन लाते हैं, किसी भी चीज़ में उतने एफर्ट्स लेकर आते हैं, तो हमको भी लगता है कि जुड़ जाते हैं और अच्छे से अच्छा काम करते हैं। आगे और कितने कार्यक्रम होंगे बुक को लेकर, इसके बारे में बता देंगे? आई थिंक उन्होंने अभी 2 बुक्स निकाले हैं, लेकिन जिस तरीके की दोनों बुक्स हैं मुझे लगता है और सीरीज़ निकालेंगे तो बहुत सारे रीडर्स होंगे जिनको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, हर कोई पढ़ना चाहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे लिए है या किसी बड़े के लिए है। आई थिंक ये छोटे छोटे बच्चे भी जो होंगे, टीनेजर्स जो होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन देंगे। तो आई थिंक इट्स अ गुड डायरेक्शन विच एवरीबडी विल गेट रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मेरे बहुत ज़्यादा बधाई और शुभकामनाएं आशीष जी को और उनके परिवार को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है। स्पेशली आजकल का जो यूथ है, जो डायरेक्शंस में ये लोग जा रहे हैं, इतना सारा इंटरनेट यूज़, ये वो, तो ये एक माध्यम है जिससे वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे अपने रिलीजन से, अपने स्पिरिचुअलिटी से। दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर रूट्स एंड दैट्स अ राइट वे टू guide them to the right direction, and this is a very great initiative. I'm really happy that I'm a part of Ashish's work colleague, and I'm really happy for that, and I'm really very grateful. Thank you so much. थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा आशीष सर को। मतलब काम के साथ दिन भर की भागदौड़ के बाद बुक लिखना इतना कम टाइम में और इतने बिजी शेड्यूल में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मतलब हमारे लिए वो लर्निंग है कि हम ऐसा कुछ कर सके फ्यूचर में कि आपका पैशन फॉलो करें वैसा, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन टू सर। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत बधाई देना चाहूँगा आशीष जी। वो हमारे नेबर्स हैं और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उसके अलावा उन्होंने सडनली हम लोग को जो पता चला कि ये बुक राइटिंग और इन्होंने आध्यात्मिक बुक लिखना शुरू किया है और इस पर काम कर रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारी बिल्डिंग में ऐसे लोग हैं जो अभी धर्म के, हम लोग जुड़े रहते हैं धर्म के, लेकिन उन्होंने उसको आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने राइटिंग किया, एक माध्यम तरीका निकाला है ताकि बहुत दूर तक काफ़ी लोगों को, बच्चों को प्रेरणा मिले आगे और जनरेशन को धर्म के बारे में समझने के लिए। तो ये बहुत बधाई पात्र हैं और हम बहुत शुभकामनाएं देते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर क्या कुछ कहना है? जिस तरह का बुक लॉन्च हुआ है, काफ़ी प्यार मिला है बुक को लेकर, क्या कुछ कहना चाहिए? ये बुक अपने आप में एक इट्स नॉट अ बुक एक्चुअली, इट्स अ लर्निंग जो हर सनातनी, हर हिंदू, हर मज़हब के लोगों को ये बुक के थ्रू जाना चाहिए। और मैं आशीष को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया, जो ये बुक लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयत्न किया है। क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, एक क्लिक किया सब कुछ आ गया, बट अभी वो थॉट प्रोसेस हम भूल गए हैं।
जैसे यूनिवर्सिटी में होता था, जैसे बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि हम खो चुके हैं। तो फिज़िकल बुक पढ़ना और डिजिटल जाना ये बहुत बड़ा गैप है। तो बैक टू, अगर हम बुक में जाते हैं, जो हम फिज़िकल पढ़ते हैं, तो उसमें एक अपना एक जुड़ाव हो जाता है अपने अंतर आत्मविश्वास, अपने अंतर इंसान का। तो मेरे हिसाब से ये बुक काफ़ी मीन्स बहुत हेल्पफुल रहेगा आज के जनरेशन के लिए। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आशीष एंड इट्स अ वेरी टेरिफिक थॉट। थैंक्स अ लॉट। Okay, first of all, thanks to Ashish that we all are here, and secondly, we have been part of the team for organizing this event. It was a very beautiful and very light journey with lots of efforts. सर को हमेशा देखा है उनकी बुक के बारे में इतना पैशनेटली काम करते हुए कि हाँ पूरा ऑफिस का काम भी कर रहे हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के बुक के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। आई एम श्योर सर ने मतलब जितना घर पे किया है उतना कितना ऑफिस में भी अपने बुक को भी ध्यान दिया है। एंड हमेशा से सर इंस्पिरेशन रहे हैं हम सबकी, बीट बी नंबर्स, बीट बी लाइफ लेसन्स। हमेशा उनके पास कोई स्टोरीज़ होती हैं हमको बताने के लिए, यू शुड डू दिस थिंग्स ऐसे या वैसे। सो येस, इट वाज अ वेरी emotional moment for every one of us who have been part of this little team of his, and we would like to say thanks for inviting us, thanks for making us part of this beautiful event, and thanks for being an inspiration every day, and lots of love, lots of respect for him. Thank you so much. तो सबसे पहले तो मैं आशीष जी और उनकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ इस इतने बड़े अचीवमेंट के लिए। और बाकी तो बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए भी बड़ा दिन है, उनके लिए भी ओबियसली बड़ा दिन है, फैमिली के लिए। हमने उनको 10 साल से देख रहे हैं, वो बहुत मेहनत भी की है उन्होंने और बहुत अच्छा मतलब अचीवमेंट किया है। आई कांट स्पीक अबाउट दिस क्योंकि मतलब इतना अच्छा फील कर रहे हैं ना। आज मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं ना, उनको वो मेरे से ज़्यादा उनको प्राउड फील होते हैं। वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मानते हैं आशीष को, अपने बेटे जैसा करते हैं। और एज ए मैं इनकी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, यानी जो भी मैंने मेंटर है, मेरी फैमिली मेम्बर जैसे है। लेकिन आज वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है सर। आशीष के लिए हो नहीं हो, बट मेरे और अरविंद के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज हमारे बच्चे ने, हमारी इन फैमिली ने बहुत बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया। और बाकी किताब के बारे में मैं इतना पढ़ी नहीं तो बोलूँगी नहीं कि क्या है, पढ़ने के बाद मैं अपना पूरा व्यू दूँगी, मतलब ठीक है इसका फीडबैक पढ़ने के बाद। बहुत खुश हूँ सर, क्या कहना चाहेंगे आशीष जी का बुक आज मेरी खुशी का भी आशीर्वाद देने पहुंचे, क्या कहेंगे? आज हमारी खुशी का कोई अंदाज नहीं है कि हमारे बच्चे ने है ना एक बहुत अच्छा काम किया है भागवत, और बहुत सुख माने देते हैं। कितनी खुशी होती है जब अपना बच्चा एक बड़े मुकाम पर जब जाता है, सब माता पिता उस चीज को मामा को पूछिए, ये अनुभव करनी चाहिए। खुशी के आंसू नहीं हमारे ना, अनुभव की चाहिए क्या कार्य। चलिए, थैंक यू। आज बुक लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आप लोग भी आए, कैसा लगा आज बुक के बारे में? So first of all, I would like to thanks my friend Ashish. I don't believe that such a good, nice book he has written, and this book's actually going to give whosoever is going to read is going to get the confidence of belief that you should believe on yourself, whatever be the circumstances, and the belief of truthfulness or belief of dharma or belief of confidence on you, on the right thing, make you success. All the best, Ashish. All the best. सर क्या कहना चाहेंगे इस बुक लॉन्च को लेकर, कितना उत्साहित है आप लोग इस बुक लॉन्च के लिए? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आशीष के थॉट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं एंड बुक जो है इट हैज़ अ वेरी स्पिरिचुअल लाइनिंग, इट हैज़ न्यू थॉट्स। तो बहुत अच्छी बुक है ये बुक के बारे में मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने कुछ पन्ने पढ़े हैं इस बुक के बारे में एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये बुक लॉन्च हो रही है एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। कितने बुक गए हैं? सॉरी,
अभी आई थिंक उनका प्री ऑर्डर में कुछ बुक्स गए हैं, आज ही बुक लॉन्च हुई है। आज के दिनों में जो भी आए थे सब बहुत ही उत्साहित होकर सब लोगों ने बुक्स ली है यहाँ पे। एंड अभी होपफुली मतलब जब लॉन्च हो गई है तो अभी और बुक्स उनकी सेल होगी। जितने ज़्यादा लोग रीड कर सकें, जितने ज़्यादा लोग पढ़ सकें उतना बेटर होगा, सो दैट जो उनके थॉट्स हैं वो बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। रोल आशीष जी, आज आपकी 2 बुक्स का लॉन्च हुआ है, किस तरह का फीलिंग्स है आपके और ये बुक्स के बारे में? ये मेरे गर्व का विषय है और काफ़ी गर्व की अनुभूति हो रही है। इसके साथ ही मुझे ये लगता है कि अगर मैं मेरी किताबों से अगर किसी भी एक प्राणी का जीवन में कुछ चेंज आ सके तो ये मेरा बहुत बड़ा योगदान होगा। कितना लोगों का प्रतिशत मिल रहा है इस समय? कितना रिप्लाई, किस तरीके का रिप्लाई आ रहा है इस बुक को देखने के बाद? ये बुक आज ही लॉन्च हुई है अभी, तो जैसा कि आपने देखा कि जितने भी बड़े बड़े दूसरे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने मेरी प्रशंसा की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सब लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ में इस बुक का अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। सर इंग्लिश में है, लोगों का मानना है कि हिंदी में भी होना चाहिए। ये बुक अभी इंग्लिश में है, इसका किंडल एडिशन आया है। अगले 2 महीने में इसका ऑडियो बुक आने वाला है, फिर उसके बाद भी उसका हिंदी का ट्रांसलेशन भी आएगा। कहाँ पर ये बुक अगर लोगों को पढ़ना हो या चाहिए हो तो कहाँ पे मिलेगी? ये बुक आपको ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है, अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, जीसी बुक पे है, एंड किंडल के ऊपर है ई बुक की फॉर्म में। ऑफलाइन स्टोर्स पे अगले 2 महीने में सब जगह आ जाएगी। थैंक यू सर।